الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں اور بالکل صحیح بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کو ہر بات ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے اور کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ جو بھی بات دل میں ہو وہ بول دینا چاہیے، زبان پر آ جانا چاہیے۔ اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، بالکل پانی کی طرح صاف اور شفاف رہتا ہے، ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے، چھپا دینا چاہیے۔ بلکہ چھپانے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ بات زبان پر نہیں آنی چاہیے، بلکہ آج جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں وہ زبان پر آ جانے سے میاں بیوی کے رشتے خراب ہوتے ہیں، ہو جائیں گے اور ہوتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہی باتیں بتانے والا ہوں جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے نہیں کہنی چاہیے، بلکہ دل میں ہی رکھنا چاہیے۔ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا کہ یہ باتیں دل میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ تو دھیان سے سننا۔ سب سے پہلی بات، اپنے لائف پارٹنر، اپنے شریک حیات پر کبھی بھی احسان نہیں جتانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل کہ بہت سارے شوہروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ باہر نکلو تب تم کو پتا چلے گا، پیسہ کمانا آسان نہیں ہوتا، تمہارا کیا ہے، تم یہی بیٹھی رہتی ہو، گھر میں آرڈر کر دیتی ہو، حکم کر دیتی ہو، باہر نکلو گی تب پتا چلے گا۔ 10 طرح کی پرابلم ہم مردوں کو فیس کرنا پڑتی ہے۔ بہت ساری بیویوں کی بھی یہ عادت ہوتی ہے، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہروں سے یہ کہتی ہے تمہارا کیا ہے، تم تو صبح چلے جاتے ہو آرام سے، شام کو آ جاتے ہو آرام سے، دن بھر گھر ہم کو مینج کرنا ہوتا ہے، میں جانتی ہوں، بچے سنبھالو، کھانا پکاؤ، کپڑے دھو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی یعنی دونوں کو ایک دوسرے پر اس طرح احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ دونوں نے شادی کی ہے اور شادی کا مطلب برابری کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ دونوں کے کام اپنی اپنی جگہ اہم ہے، ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، اس میں سے کوئی اہم کوئی غیر اہم نہیں ہے، اور دونوں ہی یعنی امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے احسان جتا کر، ایک دوسرے کے سامنے اپنے کام کو اہم بتا کر، ایک دوسرے پر احسان جتا کر کہ میں زیادہ، میرا ورچسو ہے، میرے کام زیادہ اہم ہے، ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، اور تمہارے کام کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کا احسان جتا کر آپ میاں بیوی کے رشتوں کو کمزور بھی کرتے ہیں، اور احسان جتانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جھگڑوں کی شروعات ہو جاتی ہے، یہ جنگ کا بگل ہوتا ہے، یہاں سے جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کمپیریزن کرنا، مقابلہ کرنا، تلنا کرنا۔ یاد رکھو، کبھی بھی اپنے لائف پارٹنر، اپنے شریک حیات کا مقابلہ کسی اور سے نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے شوہروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہاری سہیلی کو دیکھو، فلانے کی بیوی کو دیکھو، کتنی مینٹین ہے، اپنے آپ کو کتنی مینٹین رکھتی ہے، کتنی اسٹائلسٹ رہتی ہے، اور ایک تم دیکھو، تمہارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بہت ساری بیویوں کی بھی یہ گندی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے کہتی رہتی ہے کہ اپنے دوستوں کو دیکھو، اپنے فرینڈ سرکل کو دیکھو، کتنے فٹ ہے، کتنے اسمارٹ ہے، کتنے گڈ لکنگ ہے، اور ایک تم کو دیکھو، تمہارا پیٹ باہر آ گیا ہے، نہ جم جاتے ہو، نہ ورزش کرتے ہو، تمہارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری سہیلی کے ہسبینڈ کو، اس کے شوہر کو تو دیکھو، میری سہیلی کو کتنا گھماتا ہے، آؤٹنگ کراتا ہے، شاپنگ کراتا ہے، اور ایک تم ہو کہیں بھی لے کر نہیں جاتے، نہ شاپنگ کراتے ہو۔ تو اس طرح کی جو دل دکھانے والی باتیں ہیں اپنے لائف پارٹنر، اپنے شریک حیات کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہو۔ شادی تو برابری کا رشتہ ہے نا، کبھی بھی ایک دوسرے کو چھوٹا فیل نہ کرائے، چھوٹے پن کا احساس نہ دلائے۔ اس سے میاں بیوی کے رشتے میں تناؤ بڑھتا ہے، تنا تنی شروع ہوتی ہے، جس سے آپ کا رشتہ دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے اور طلاق تک پہنچتا ہے۔
तीसरा है डिमांडिंग एटीट्यूड और डिमांडिंग डायलॉग, यानी हर वक्त ऐसी चीजों की डिमांड करते रहना जो अपने शौहर की हैसियत से बाहर हो। ऐसी चीजें अपने हस्बैंड से मांगना जो, जैसे कि मुझे जेवर ला कर दो, मुझे आईफोन ला कर दो, मुझे एक्टिवा दिला दो, मुझे महंगी महंगी ड्रेस दिला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर शौहर कहता है कि देखो मेरी ताकत नहीं है, तो फिर बीवी का जवाब ये होता है, फिर मुझसे शादी क्यों की? जब मेरे खर्चे और मेरे नखरे ही तुम उठा नहीं सकते तो मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी? तुमको शादी से पहले ही सोच लेना चाहिए था। इसी तरह शौहर भी डिमांडिंग होते हैं, वो भी किसी से कम नहीं होते। उनके पास भी एक लंबी लिस्ट होती है, जैसे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, खाना बना लिया तो क्या हुआ, कपड़े धो लिया तो क्या हुआ, बच्चे संभाल लिया तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए करती क्या हो? तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त है ही नहीं, मुझे क्या मिला तुमसे शादी करके? अब बताइए, क्या इस तरह की बातें करके या इस तरह की बातें मियां बीवी को या बीवी को मियां से करनी चाहिए? कभी भी नहीं। इससे रिश्ते टिकते नहीं हैं बल्कि खत्म हो जाते हैं। ऐसी बातें करने से आप अपने लाइफ पार्टनर का, अपने शरीक हयात का दिल तोड़ रहे होते हैं, और जहां दिल टूट जाते हैं वहां रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। तो कभी भी अपने लाइफ पार्टनर की हैसियत देखकर, उसकी ताकत देखकर डिमांड करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की जरूरत समझ आ जानी चाहिए। जब भी यानी शौहर का तनख्वाह हो जाए या उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाए तो वो खुद ही अपने बीवी के लिए कुछ हदिया, कुछ गिफ्ट लेकर आ जाए। या बीवी को ये करना चाहिए कि जब शौहर परेशान हो उसके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाकर, यानी डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। बस रोजाना कुछ ना कुछ डिमांड, मुझे ये ला कर दे दो, वो ला। अपने पड़ोसी को देखना, अपनी सहेलियों को देखना। और देखिए, बाहर से सब अच्छे लगते हैं, अंदर का दुख हर एक को उनको ही पता होता है। वो आपके सामने तो सिर्फ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस चमक के पीछे क्या अंधेरा होता है वो लोग नहीं बताते। इसलिए अपनी जिंदगी का, अपने शौहर का, अपनी बीवी का कंपैरिजन दूसरे से न करें या उनके कपड़ों से न करें। क्या होगा कि आप अपने शौहर की ताकत को देखें, उसकी इस्तिताअत को देखें। आप भी अपनी बीवी की ताकत, उसकी इस्तिताअत को देखें। ज्यादा डिमांडिंग होना और ताकत से बाहर शो ऑफ करने की कोशिश करने से आपका रिश्ता कमजोर होता चला जाता है। चौथा है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी बीवी वर्किंग है, जॉब करती है, काम करती है, और कभी वो थक कर घर आती है और अपने शौहर से कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूं, तो बहुत सारे शौहर क्या जवाब देते हैं? मैंने कहा था तुमको जॉब करने के लिए, मैंने कहा था तुमको बाहर काम करने के लिए। इतना अगर थक जाती हो तो घर पे बैठो, छोड़ दो जॉब, बाहर जाने की क्या जरूरत है? और मिसाल के तौर पर अगर बीवी वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है, घर में ही रहती है, और कभी कभार बीवी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं, तो शौहर का जवाब क्या होता है? अरे तुम घर में रह के थक जाती हो, ऐसे कौन से पत्थर उठाती हो, ऐसे कौन से पहाड़ उठाती हो? और दूसरी तरफ बीवियां भी कम नहीं होती। देखिए, जब भी शौहर बाहर से थक हार कर घर में दाखिल होता है तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और चिड़चिड़ेपन के साथ बहुत सारे शौहर घर में दाखिल होते हैं। तो अक्सर वाइफ, उनकी बीवियां इस तरह से उनके साथ पेश आती है, इस तरह की बातें करती है, तुम तो हमेशा ऐसे ही घर में दाखिल होते हो, जब भी घर में आते हो तुम्हारा मुंह लटका हुआ ही रहता है, तुम हमेशा चिड़चिड़े ही होते हो, जैसे सारी दुनिया की परेशानियां तुम्हारे ही साथ है, मैंने तो तुमको आज तक खुश देखा ही नहीं। अब आप बताइए, इस तरह की पागलपन की बातें दोनों तरफ से जब आएगी तो झगड़ा नहीं होगा तो क्या प्यार होगा? दोनों के काम, देखिए, दोनों के काम अपनी अपनी जगह अहम है, दोनों के कामों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। इसलिए किसी को भी किसी के काम को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के कामों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। कभी भी एक दूसरे के कामों को और एक दूसरे को
यानी बुराई नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के काम की या एक दूसरे की यानी क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। पांचवी चीज, दोनों को भी बहुत सेक्रेटिव नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए जैसे फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बीवी फोन पर बात कर रही है और शौहर आ जाए और देख ले कि पूछे कि किससे बात कर रही थी, तो बीवी को बता देना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी टाल नहीं देना चाहिए। और इसी तरह अगर शौहर फोन पर बात कर रहा है और बीवी पूछ ले कि किससे बात कर रहे थे, तो शौहर को भी बता देना चाहिए। यानी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं छोड़ो तुम, ऐसे कुछ खास नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि दोनों के दिल में शक पैदा होता है, होता कुछ नहीं है लेकिन शक को दाखिल होने के लिए जगह मिल जाती है। दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, आप डिटेल में मत बताइए, तफसील से मत बताइए, लेकिन कुछ मोटा मोटा तो बता दीजिए। जैसे बीवी कहे कि मैं जरा मेरी बहन से बात कर रही थी, मेरी माँ से बात कर रही थी, मेरी सहेली से बात कर रही थी। शौहर बता दे कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, अपने बॉस से बात कर रहा था, या अपने जो भी बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में मोटा मोटा वो बता ही दे, टाले नहीं, इससे शक पैदा होता है। छठी बात, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, इज्जत नफ्स, शौहर को बीवी का और बीवी को शौहर का, दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। लोगों के सामने या किसी के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने या दोनों के ससुराल के सामने ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे सामने वाले को शर्मिंदगी महसूस हो या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। ऐसा कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये अल्फाज हम बोल देते हैं, भले हंसी मजाक में क्यों ना हो, लेकिन जब सामने वाले हंसते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। आप देखिए ना, कभी आप गाड़ी से गिर जाए या फिसल जाए या ठोकर लग जाए, तो आदमी सबसे पहले ये नहीं देखता कि जख्म का लगा, बल्कि सबसे पहले ये देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं। अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका जख्म उससे बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो उसको उसका जख्म छोटा भी बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि वो जख्म उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगा होता है, उसके इज्जत नफ्स पे लगा होता है। हम ऐसे हल्की फुल्की मजाक में किसी के सामने अपनी बीवी के लिए या बीवी शौहर के लिए कुछ ऐसी यानी तंजिया बातें, मजाक वाली बात कर देती हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच जाती है। इससे भी जो है, देखिए, अल्फाज पत्थर होते हैं, पत्थर की तरह होते हैं, जो मियां बीवी के रिश्तों को लहू लुहान कर देते हैं। सातवीं और आखिरी बात, मियां बीवी के दरमियान कुछ भी पर्सनल नहीं होता, सब म्यूचुअल होता है, यानी सब आपस की अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। इसलिए कभी मियां बीवी से और बीवी मियां से ये ना कहे कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा अलग से है, या ये मेरा, मैं इसको देख लूंगी या मैं इसको देख लूंगा, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। पर्सनल कुछ भी नहीं होता मियां बीवी के दरमियान। खास तौर से हर मामला एक दूसरे पर खुला खुला होना चाहिए, इससे दिल बड़ा होता है, दिल में मोहब्बतें पैदा होती है। अरे बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि इन 7 बातों को अगर आप अपने दिल में ही आने ना दे, और दिल में भी आ जाए तो उसे छुपा के रखे, जबान पर आने ना दे, तो इंशाअल्लाह मियां बीवी के आप दोनों के दरमियान का जो रिश्ता है वो मजबूत होगा, उसकी जड़ें मजबूत होगी, कभी झगड़े नहीं होंगे, फसाद नहीं होगी, तलाक तो बहुत दूर की बात है। मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप आगे इसे जरूर शेयर करें। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे मियां बीवी के टूटते रिश्ते, उनको उनकी गलतियों का एहसास होगा और वो रिश्ते बच जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।